नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे 16वां पाठ बाल शक्ति। इसके लेखक है श्री जगत राम आर्य। In the history, if we find any revolution, if it is successful, it's only because of youth. If youth decides to bring any change in the society or in the country, then no one can stop them. Here in this small drama, little children of a school decided to make their village into a model village, and they got success. Let us see how they could achieve in their goal. Let's move on. लेखक परिचय। लेखक का नाम जगत राम आर्य। जन्म हिमाचल प्रदेश के ऊना में 16 दिसंबर 1910 में हुआ था। He was born in Himachal Pradesh, Una, on 16th December 1910. शिक्षा इनकी पढ़ाई निकट गांव के डीएवी स्कूल में हुई। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग अमर शहीद भगत सिंह के साथ कई क्रांतिकारी घटनाओं से जुड़े रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत बड़े देशभक्त भाई परमानंद के साथ भी रहे थे। इनका निधन 1963 में हुआ था। पात्र परिचय। रामू, श्यामू, मोहन, संजय, किशोर, मनोज स्कूल के छात्र, गुरुजी स्कूल के अध्यापक, कलेक्टर साहब एक बुजुर्ग। रामू, तेरे कैसे हो गए? निशाना तो नीले वाले को लगा है, हरा कंचा तो अलग पड़ा है। How could you get all these marbles? You hit the blue one. The green one is lying around. श्यामू, झूठ मत बोल, तू सदा खेल में बेईमानी करता है। Don't lie. Always you are dishonest in the game. Cheating. दे दे कंचे. Give all the marbles. वरना मार दूंगा, or else I'll hit. रामू की कमीज का कॉलर पकड़ता है। So Shamu caught hold of his collar. मोहन, देखो अब तो स्कूल का समय हो रहा है, घंटी बजने वाली है, ये फैसला बाद में कर लेना। Mohan said, Look, now it's getting late for the school, so it's going to be the bell. ये फैसला बाद में कर लेना। You can decide it later. शाम, अच्छा अब तो छोड़ता हूँ, पर शाम को दे देना। Okay, now I will leave, but my evening you have to give. राम, चल चल अपना रास्ता पकड़, बड़ा आया कंचा लेने वाला। Go, go, go on your way. Came, a great person came to take marbles. मोहन, अरे भाई, स्कूल नहीं चलना है क्या? Oh brother, is it not coming to school? राम, तुम जाओ स्कूल, मैं नहीं आऊंगा। एक दिन स्कूल नहीं जाने से क्या होता है?
Yoga, I will not go. If I don't go one day, nothing will happen. श्याम, मोहन भैया, ये तो कई दिन स्कूल नहीं जाता. मोहन brother, he'll not go to school many days. जिस दिन भी गृह कार्य नहीं करता, उस दिन स्कूल से छुट्टी कर लेता है. Whenever he doesn't do his homework, that time he'll take off. आज गणित का होमवर्क, गणित का काम दिखाना है ना. Today you have to show the math homework, no? मोहन, देखो रामू, ये ठीक नहीं. मोहन said, Look Ramu, this is not right. एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं. To hide one lie, you need to lie many lies. रामू, चलो मोहन भैया, इसे रहने दो. श्यामू said, चलो मोहन भैया, इसे रहने दो. स्कूल चलने में देर हो रही है. चलो. It's getting late for the school. Come, let us go. दोनों चले जाते हैं. Both of them went off. रामू कंचे खेलने में लगता है. Ramu was busy in playing marble. दूसरा दृश्य, in the second scene, स्कूल में भोजनावकाश का वक्त है. In the school it is a break time, lunch break. 5 बालक स्कूल के एक कोने में एकत्र होकर बातें कर रहे हैं. 5 boys together in a corner of the school, thus talking about something. Shamu said, देखो ना मोहन भैया, look मोहन भैया, look मोहन brother, आज रामू ने खेल में फिर से मेरे साथ बेईमानी की. Today, Ramu again cheated me in the play. Then Sanjay said, वो तो बात-बात में झूठ बोलने लगा है. Sanjay said, he keeps lying for everything. मनोज ने कहा, मैंने सुना है कि 12 साल से नीचे की उम्र में बच्चों को तो कोई पाप नहीं लगता, चाहे वो झूठ बोलना ही क्यों न हो. Manoj said, I heard that if a child is below 12 years and they don't commit any sin, even though if they lie also, it won't be a sin. Sham, अरे मूर्ख, यही तो उम्र है अच्छी आदतें डालने की. Shamu said, for that, oh fool, this is the age for you to learn all good habits. अब जो आदत पड़ जाएगी वो सदा साथ रहेगी. Now whatever the habit you learn, so that will stay with you forever. किशोर, गुरुजी भी यही कहा करते हैं. गुरुजी also tells the same thing. मोहन ने कहा, हाँ, हमें अभी से अच्छी आदतें डालनी चाहिए. इसके लिए हमें मिलकर कुछ करना होगा. Mohan said, yes, we need to practice good habits from now itself. For that, we need to be together and do something. Then Kishore said, क्या करना होगा? What do we have to do? Then Shamu said, हमें एक टोली बनानी पड़ेगी. We need to start a group. मोहन ने कहा, इस टोली में रामू को भी शामिल करेंगे. So in this group will include even रामू और उसकी गंदी आदतें छुड़वाएंगे. And will try to remove his bad qualities. टन टन करके स्कूल की घंटी बजती है. स्कूल बेल रैंग. Then Mohan said, चलो अब कक्षा में चले. Come, let us go to classes. शाम को सब यही मिलना.
the evening let us meet together here only. हाँ, रामू को कौन लाएगा? Yes, who is going to bring Ramu? संजय said, उसे मैं बुला लाऊंगा. I'll get him. वो मेरी बात मानता है. He listens to me. तीसरा दृश्य, थर्ड सीन. मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठे बातें कर रहे हैं. So all these Mohan, Sanjay, Kishore, Shyamu and Manoj are seated and talking. मोहन सर, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं. From today, we are going to start a new group, small group. उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति and its name will be बाल शक्ति. रामू, ये टोली क्या करेगी? What the group is going to do? संजय ने कहा, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं. संजय said, first of all, we have to keep an eye on those friends who are not coming to school every day, who are irregular to school and they try to escape from studies. For that Kishore said, किशोर ने कहा, ठीक कहा, yes, you are right. दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना. Second work will be keeping the school premises clean and neat. तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना. The third work should be removing all the garbage and dirt from the village. Mean to say, keeping the village clean and neat. हम रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे. So we'll keep 1 hour for the cleanness of the village. Means we'll work for the cleanness of the village every day at least for an hour. श्यामू ने कहा, गांव में कई गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से ढांपना होगा. So there are so many ditches in the village. So we'll have to fill all those ditches, potholes with the mud. Then Manoj said, मनोज ने कहा, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे. So we'll make a particular place for throwing all the garbage. तथा and गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें. So we'll request all the villagers to put the garbage in that itself. मोहन ने कहा, टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना. The next work of the team will be making the village or keeping the village green. हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे. So we'll plant trees all around the village. तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे. And we'll plant some fruit bearing trees near our houses. For that Ramu said, रामू ने कहा, ये तो बड़ा नेक काम है. It's a very nice work. हमें कल से ही काम करना चाहिए. So we'll have to start working from tomorrow itself. मनोज ने कहा, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा. We'll have to follow the rules of the group, the team. सब बच्चे हाँ करेंगे. All the children said yes, we'll follow the rules. That Shamu said. Shamu ने कहा,
अपनी टोली के मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रख रहा हूँ। एज ए लीडर ऑफ द टीम आई विल सजेस्ट मोहन। मोहन्स नेम। आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सब बच्चे हमें मंजूर है। All the children said, we accept it. चौथा दृश्य, फोर्थ सीन। एक साल बाद, आफ्टर अ ईयर, गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। So they have arranged a very big function meeting. जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर and the people's representative and also sarpanch have come to attend the program. गांव के सब लोग उपस्थित हैं and many people of the village are present in that function. Then collector said, कलेक्टर ने कहा, इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। I'm very much impressed. I'm very happy to see the cleanliness of the village. गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। So it is evident that they have given a new life for the village. इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। So how much ever you appreciate, praise these children is less only. इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। So all these children together gave a स्वच्छ वातावरण, a very good environment to the village. बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। Because of this Bal Shakti team, your village has become a model village. उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। So people those who were present all started clapping. And कलेक्टर ने कहा, कलेक्टर, सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिए गए हैं। The government has given awarded 5,000 rupees for this बाल शक्ति टीम। इस टोली का मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करे। The leader of this group, team, must come and receive the amount. मोहन जाता है। मोहन goes. कलेक्टर साहब मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं। So Mohan goes and receives 5,000 rupees cover from the collector. मोहन ने कहा, ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। We'll give this amount to the headmaster. स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। So we'll provide books for the poor children in the library of the school. एक बुजुर्ग, so one elderly person of the village said, एक गांव के सच्चे सपूत हैं। These children are the real good children of this village. सभी लोग बोलते हैं। So all of them, all the people of the village said, बाल शक्ति की जय, बाल शक्ति की जय। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कौन कौन कंचे खेल रहे थे? रामू और श्यामू,
कंचे खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न, खेल में कौन सदा बेईमानी करता है? उत्तर, खेल में रामू सदा बेईमानी करता है। तीसरा प्रश्न, रामू को स्कूल जाने के लिए कौन कहता है? उत्तर, रामू को स्कूल जाने के लिए मोहन कहता है। चौथा प्रश्न, रामू ने किस विषय का गृह कार्य नहीं किया था? आंसर, रामू ने गणित विषय का गृह कार्य नहीं किया था। फिफ्थ वन, हमें किस उम्र में अच्छी आदतें डालनी है? उत्तर, हमें 12 साल की उम्र में अच्छी आदतें डालनी है। सिक्स्थ वन, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? आंसर, रामू को टोली में लाने की जिम्मेदारी संजय ने ली। टोली का मुखिया कौन था? उत्तर, टोली का मुखिया मोहन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, बच्चों की तारीफ किसने की? उत्तर, बच्चों की तारीफ कलेक्टर साहब ने की। दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। रामू में कौन कौन सी बुरी आदतें थी? व्हाट आर द बैड क्वालिटीज रामू हैड? रामू में झगड़ा करना, बेईमानी करना, गृह कार्य न करना, स्कूल न जाना, ऐसी बुरी आदतें थी। दूसरा प्रश्न, गांव की सफाई के लिए बालक क्या काम करते हैं? व्हाट आर द वर्क दीज चिल्ड्रन डू टू कीप द विलेज क्लीन? गांव की सफाई के लिए बालक गांव की गंदगी को दूर करना, रोज 1 घंटा गांव की सफाई में लगाना, गांव में कई गड्ढे थे उनको मिट्टी से ढांपना, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाना तथा गांव के सभी भाइयों से कहेंगे कि कूड़ा उसी जगह में डालें, ऐसे काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गांव को आदर्श गांव कैसे बनाया जा सकता है? हाउ कैन वी डू अ विलेज अ मॉडल विलेज? हाउ कैन वी मेक अ विलेज इनटू अ मॉडल विलेज? गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गांव को हरा भरा रखना, गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाना तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाना और प्रमुख कार्य गांव के हर एक घर में शौचालय बनाना। फोर्थ क्वेश्चन, कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में क्या कहा? व्हाट डिड द कलेक्टर से इन प्रेसिंग चिल्ड्रन? कलेक्टर साहब ने बच्चों की बड़ाई में कहा, बच्चों की बड़ाई में गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन क्या सोचता है? उत्तर, 5,000 रुपये मिलने पर मोहन कहता है, ये रुपये हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे।